प्यासा यानी डाले। जंगवान ओडिया के हृदय और आत्मा है। गांव में जंगवान के पूरे श्रद्धा और विशेष रूप से तैयार किया जाता है, सजाया जाता है और एक पवित्र मंच पर स्थापित किया जाता है जिसे जंगवानतोंग कहते हैं। यह स्थान गांव के पवित्र उपवन के पास होता है जो आमतौर पर गांव के मुखिया के घर के निकट स्थित रहता है। देवियों सज्जनों, हमारे माननीय मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि पहुंच चुके हैं। कृपया सब अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। May I request one and all to kindly rise as we welcome the chief guest of honor. नहीं वीडियो वाका थे ना किसी का देखा दिखेगा। देवियों सज्जनों, अब हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री मृत्युमती जी, ऑनरेबल एमएलए 43 रोइंग एसटी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, एवं स्टेट चीफ स्पोक्सपर्सन बीजेपी वैसियान तथा एक्स जेपी चिकन Ladies and gentlemen, the chief guest of honor and all other dignitaries are now proceeding to the Zangwantong for the traditional offering ceremony, escorted by the traditional dancers. The Zangwan is the central figure of the Oriya festival. The most important part of the Oriya festival is the procurement and installation of a sacred bamboo, because the spaces are equally considered in our culture. Destruction of nature is considered as destruction of human life itself. Protection of animal of nature. सभी माननीय अतिथि जंगवानतोंग की ओर बढ़ रहे हैं और पारंपरिक चावल की मदिरा का अर्पण किया जाएगा और साथ ही ओरिया एंथम गाया जाएगा। सजाया जाता था और एक पवित्र मंच पर स्थापित किया जाता जिसे स्पीच बाय गेस्ट ऑफ ऑनर। आफ्टर द स्पीच ऑफ गेस्ट ऑफ ऑनर ट्रेडिशनल टग ऑफ वॉर शो होगा
इसके बाद है स्पीच का चीफ गेस्ट और वोट ऑफ थैंक्स बाय देवी और सज्जनों, हमारे मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि स्टेज पर आ चुके हैं। वीआईपी में से किसी का होगा? Hello and a very good morning, ladies and gentlemen. A very warm welcome to this absolutely wonderful, beautiful and auspicious day. Love and respect we have for our culture through music and dance. Now, to formally extend our greetings and set the tone for the rest of the program, it is my great honor and privilege to invite Charting Women Group for the welcome song. Swagatam, swagatam, michu miti jika swagatam, swagatam, swagatam. Lam zoinat pong poi niye, lam zoinat pong poi niye. Ade ade dentoma, ani hai pu kem zangban. Mai le wayayo, ani mai hai. Malam canu dalam pulang hai hai. Kalau kembang banua, ani onu siapa me? Mai le, ani onu siapa me? Mai le, kembang ban pitam sehe orang mua. Kembang putih menjadi. Kembang ban pitam sehe orang tua. Kembang putih menjadi. Upan piting langko salu makepan. Manu lupan awayo gambar jatimpi. Upan piting langko salu makepan. Manu lupan. Oria committee member, endulale, kuali apa ni lagi kia, kem pemawang humpa, endulale, kuali pemawang humpa, sini mandi, siapa mempa, apa luapa, ibi biye, kem nganu sang le, kau le kola tile, ani kem penau, turu bang samila le, ini le, kang le, asal endulale, onu jale tile, izai le, ani kem onu japa le. Nang matiba, kumatiba, tunulik tu, ang usaway, san may yohang ka pay, kaya maahong ka siyang tu, izay le, nang matiba, kumatiba, tunulik nu, may laho ole, ya sila tayle, endula le, o ya pang pado bale, kaya sasa ilingo bale, ahe chika, endula chahi ka sa jiyam tu, tatain pa, kaya may, ani ining lakyan ha, mi panahiri tayle, izay le, kaya may, Maile potential ahwa me nang keme kem walam kem mungam maile ahong kang pagma bibi kem
कमिटी को खांगे एन दुला पनपा चोंग तो खांगे केम पांगु सांग काहो को गया अथे केम भाई है तई क्या पनपा को भाई मंगपंग का इलाका है श्रीमान ऊंची मिट्टी सर माननीय विधायक गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एवं गृह और शिक्षा के मुख्य सलाहकार अर्थात राज्य के मुख्य प्रवक्ता माननीय अतिथि श्रीमान डीएम बपक सर जो वेस्ट सियांग जिला के बीजेपी जिला प्रभारी विशेष अतिथि श्रीमान तापी सोन सर जो एनपीपी के राज्य कार्यकारी अध्यक्ष है और उनके साथ आए हुए सम्मानित अतिथि सरकार के अलग अलग विभाग से आए हुए विभाग के प्रमुख कुमाऊं सर्कल के सर्वोपरि राजा और 4 गांव के राजाएं और उनके सभासद चैंपियन मैडम पंचायत लीडर्स गांव बुरा और हमारे समाज के सम्मानित बुजुर्ग ऊर्जवान युवाएं और यहाँ उपस्थित सभी प्रिय भाइयों और बहनों आप सभी को ओरिया पर्व की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे लिए केवल एक त्योहार नहीं बल्कि हमारी पहचान हमारी गौरवशाली परंपरा और हमारे जड़ों से जुड़ने का दिन है। जब हम ओरिया मनाते हैं तो हम अपनी मिट्टी की खुशबू और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद को महसूस करते हैं। अतिथि महोदय मैं चंद शब्दों में आप सभी के बीच ओरिया की विषय में छोटी सी प्रकाश करना चाहूंगा। हम जंगवन से आने वाले साल में अच्छी और सुख शांति का प्रार्थना करते हैं। जब हमारे पारंपरिक वेशभूषा हमारे लोक नृत्य और संगीत की गूंज ये बताती है कि हमारी संस्कृति आज भी उतनी ही जीवंत है। ये पल हमें सिखाते हैं कि हम सब एक हैं और एक साथ मिलकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया में सबसे संगीत का उपकरण हमारे वांचो जनजातियों में है जिसे हम खम कहते हैं, जिसका उपयोग हम अलग अलग क्षेत्र में किया जाता है जैसे कि आपातकालीन में घोषणाओं के लिए और आज के जैसे ओरिया के अवसर पर। ओरिया का अगर हम उल्लेख करने लगे तो हम शायद कि आज खत्म कर पाएंगे, इसलिए हम यहीं पर अपनी ओरिया का उद्देश्य रखता हूँ। हमारे सौभाग्य है कि आप हमारे परंपराओं का साक्षी बनने यहाँ आए हैं। मैं ये उपस्थित सभी अतिथि का हृदय से स्वागत करता हूँ। अपनी कीमती समय से कुछ पल निकालकर हमारे इस उत्सव की शोभा बढ़ाई है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। पारंपरिक नेत्रों के हित पर फिरके और अपनी इस अनमोल विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प लें। एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है और ओरिया का ढेरों शुभकामनाएं। मुंगमे ओरिया, जय कुमाऊं सर्कल, जय वांचुनु, जय लोंगडिंग, जय अरुणाचल। थैंक यू। सेवा भावना ने क्षेत्र को नई दिशा और नई पहचान दी। अब हम सभी गर्व और सम्मान के साथ उन्हें सम्मानित करेंगे। सब लोग एक बार सर के लिए तालियां बजा दीजिए। सर के लिए हमारा गिफ्ट वांचो हैंड बीडेड कोट और ये है लिकनू। और इसे संतून को हम कहते हैं और ये हमारे लोकल आर्टिसंस के द्वारा बनाया गया। पानी की गड़गड़ाहट कानों तक आना चाहिए प्लीज। हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी और ये हमारे लोकल बेल्ट जिसको भी हमारे
लोकल आर्टिजन्स के द्वारा हैंड बीटेड किया गया है। लोकल पा और ये है हमारे लोकल गन। सर अब बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं भाई। आइए हम सब उनके लिए तालियां बजा दीजिए। देवियों से जनाओ, तालियों की गड़गड़ाहट कानों तक आना चाहिए। हमारे माननीय देव दापक जी को भी हमारे वांचो ट्रेडिशनल ड्रेस में बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, हमारे प्रेम और सम्मान के इस छोटे से प्रतीक को स्वीकार करने के लिए। A big round of applause, everyone, please. कुमाऊं ब्लॉक। थैंक यू मैडम। DLS से ईस्ट सियांग पासीघाट और उन्हें सम्मान किया जा रहा है मिसेस अनिल सुमयान, वाइफ ऑफ ओरिया प्रेसिडेंट एडवोकेट वंशु वंशु। Thank you so much, sir. तालियां।
नाबम विशाल जी को बीजेपी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज करादा दी। धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करते हैं एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन। करना चाहूंगी श्री रोसब रंगमो जी को वीपी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन। जोरदार तालियां हो जाए सबके लिए। ओरिया के भी फाउंडर हैं। सर के वजह से ही आज कुमाऊं सर्कल में ओरिया मना रहे हैं, तो तालियां हो जाए सर के लिए। This program has been organized so successfully and beautifully today. I humbly request him to kindly come forward to the stage and inspire us with his valuable and motivating words. Muchas nak tatango. Malaysia. Malaysia. Thank you.
उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुश हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एमएलए रोइंग, एडवाइजर टू मिनिस्टर ऑफ होम एंड एजुकेशन कम स्टेट चीफ स्पोक्स पर्सन बीजेपी अरुणाचल प्रदेश। सर्कल वासियों के लिए ये बहुत बड़ा दिन है और ये दिन को मुझे लगता है कि हमारा पुमा सर्कल के वासी कम से कम 2-3 बरस तो याद ही रखेंगे, क्योंकि रात से आज तक आए नहीं और आज तक इतने बड़े तादाद से आज तक ये ओरिया फेस्टिवल हुआ ही नहीं है। लेकिन जैसे ही मेरे लोगों को पता चला कि मुचू सर आ रहे हैं तो सारे लोग, गांव के लोग आज निकल के आपको वेलकम करने के लिए यहाँ पहुंचा है। और खास तौर से इन लोगों का दिल दिमाग में यही एक चीज याद है कि जब इस हेडक्वार्टर में हमारे वासियों के पास जब रास्ते नहीं थे, उस वक्त आपके पिता हमारे पूर्व चीफ मिनिस्टर मुकुट मिथी जी, उसने हमारे वासियों के लिए जब सबसे पहले जब उसने हमारा चीफ मिनिस्टर अरुणाचल के जब बने तो उन्होंने हमारे वासियों के लिए एक थैंक यू गिफ्ट भिजवाया था जब हमारे पास रोड रास्ता नहीं था। उस वक्त यहाँ पे खुद चल के उसने हेलीकॉप्टर से आके यहाँ पे लोगों को राशन पानी दिया था। आज भी हमारे पुमा सर्कल के वासियों बस उसी के याद में आज भी सब यहाँ पर आए हैं, बस आपका एक झलक के लिए। मैं आपको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे जो यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों का सपना को आपने साकार किया। उन लोगों का जो एक बनने से पहले कि जो हमारे जो उस वक्त में जो हमारे सबसे ज्यादा जरूरत था, उस वक्त में जो आया, उसका बेटा किस तरह से दिखता होगा, किस तरह से होता होगा, ये एक आशा लेके बैठा हुआ था। तो आज मैं पुमा सर्कल के बुजुर्ग वासियों, आप सबको, ये हमारा मुचू मिथी सर है जो उभरता हुआ सितारा है। ये अब हम जैसे नौजवानों को रास्ता दिखा रहे हैं, अब वो हमें साथ लेके चल रहा है और एक वक्त आएगा जब मुचू सर जैसा नौजवान यंग जनरेशन हमारे अरुणाचल प्रदेश को उन्नति के रास्ते दिखाएंगे। जो आज के अरुणाचल है वो और भी आने वाले कल में और भी आगे बढ़ेंगे। इसके रूल में, इसके काल में मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा ऑनरेबल एमएलए रोइंग मुचू मिथी जी आज सब देख रहे हैं कि हमारा सीएम जी के नेतृत्व में जो आपको होम एंड एजुकेशन का जो एडवाइजर बनाया गया है वो बखूबी से निभा रहा है। सारे अरुणाचल वासी आपको देख रहे हैं और आपके काम को बखूबी से वो लोग बहुत ही गौर से देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो अभी कार्यकाल कर रहे हैं, जो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, उसी तरह आप कंटिन्यू करते रहेंगे। ये हमारे पुमा सर्कल के वासियों के ब्लेसिंग है। इतने दूर से सुबह 3 बजे उठ के इतने रास्ता खराब होते हुए भी आपने एक भी आपने सोचा ही नहीं कि रास्ता कैसा होगा, इतना दूर क्या होगा। लेकिन आपने एक झलक नहीं, जब हमारे कमेटी आपके पास आए, चीफ गेस्ट के तौर पर आप आइए, आप उसने बिना झिझक के आपने स्वीकार किया। ये हम लोगों के लिए बहुत बहुत ही बड़ा दिन है और बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपका। पुमा सर्कल के वासियों के आपके ऊपर आशीर्वाद है। आपके कार्यकाल आप जो भी कर रहे हैं सब दुआ करेंगे कि आपका हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार सब सही सलामत हो, ताकि आप हमारे अरुणाचल प्रदेश को आपके उन्नति से और भी आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच कंसिस्टेंसी। डीएम सर, जब आपसे मैंने फोन पे बात किया कि सर आप आइए हमारे सर्कल पे, आपने एक ही पल में हाँ कह दिया। इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया हमारे कमेटी की और तरफ से।
आपके जितने भी लोग टीम आपके साथ आए हैं, इतने दूर से आए हैं, हमारे पास आप लोगों को देने के लिए कुछ तो नहीं है, लेकिन भर भर के ब्लेसिंग है, लेके जाइएगा। हमारे पूरे कुमार सर्कल के जितने भी लोग हैं, सबके आशीर्वाद है आपके साथ भी, आपके कार्यकाल में आप जो भी कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बरकरार रखें। नहीं होता अगर वो मेरा पीछा खड़ा नहीं रहता। मैं उसको पूरे कुमार सर्कल के वासियों की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपका ये हमको जो गाइड करना, हमको दिशा दिखाना, ये मैं कभी नहीं भूल। उसके बाद मेरा बड़ा भाई श्री जुंता अंकर, स्टेट जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन नेशनल पीपल पार्टी अरुणाचल प्रदेश यूनिट, जिन्होंने हमेशा मुझे उत्साह दिया, हमेशा गाइड किया, हमेशा आगे बढ़ने को कहा। आज हम सब के बीच यहाँ आए हुए हैं इतने दूर से। हमारे बड़ा भाई जुंता जी अभी वो खुद भी चेयरमैन है न्योकुम के दापोरिजो में, फिर भी अपने इतने बिजी स्कूल को छोड़ के हम सब के यहाँ उपस्थित हुए हैं। बड़ा भाई जुंता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। The hardworking and peace-loving Wanchos inhabits the Longding district of Arunachal Pradesh. They live in their own independent way by emulating their own ethos, traditional heritage, cultural identity, and ethical choices of immense values. The June cultivation or shifting cultivation is the mainstay of the people apart from the other economic activities. Chieftaincy with the Wangham as the head prevail in every Wancho village. The village council is for Ngorang. It is empowered with all political and judicial responsibilities within the village and the Wancho society. Wanchos believe in the existence of Almighty, omnipotent, omnipresent, and omniscient God called Jawanzang. Jawanzang means the God in the sky. Jawan is not the name of God. Jawan simply means God. The people live their life following and keeping the sanctity of the Wanglam. That is the kind of living as given by God. The people are believers of Jawan and followers of Wanglam, which we can call as indigenous faith or way of worship. It is believed that one group of Wanchos migrated to Tannu and the other to the Sangnu. There is reference of Tinu, Monu, Longpo and Sangnu while chanting during Sachawan rituals where people call for abundance and early reaping of crops. In those days, they used to be inter-village feud for various reasons. Some anthropologists term it as head hunting, which need to be hereditary.
gain supremacy over the neighboring villages as well as defend and protect themselves. Wanchos celebrate a number of fair and festivals such as Oria, Lodum, Sachavam, Pujam, etc. All these festivals differ in the time of celebration, type of rituals performed and place or location of the celebration. But people being agrarian, most of these festivals are related to the agricultural processes and Mother Nature. Rituals are the integral part of every celebration. Celebration cannot be without performing a ritual. The Almighty God, Jawanzang, is evoked by uttering its name. देखा देवी और सज्जनों, लोंगखाव गांव प्राचीन समय से
अपनी बहादुरी और साहस के लिए प्रसिद्ध रहा है, विशेषकर उस दौर में जब युद्ध और वीरता जीवन का हिस्सा था। उस समय शत्रु पर विजय और शीर्षेला हेडहंटिंग के बाद जब योद्धा विजय होकर घर लौटते थे, तब ये युद्ध नृत्य किया जाता था। ये नृत्य गांव के योद्धा की नृत्य और वीर भावना का प्रतीक माना जाता था। परंपरागत रूप से ये नृत्य विशेष अवसरों पर, खासकर युद्ध में विजय और हेडहंटिंग के बाद किया जाता था। परंपरागत रूप से ये नृत्य विशेष अवसरों पर, खासकर युद्ध में विजय और हेडहंटिंग के बाद किया जाता था। ये केवल एक सम्मान था, बल्कि लीजिए वीडियो को आगे सुना लीजिए। Dân hoa ta hông bình lê ô mẹ thầy ma bên tùng ta sạch ta lấy lại ngùa ế thầy làm giàu lão thầy làm giàu lão qua trong những công tác và tôi hầm phú nhã hầm một khăn mày lòng trả đi gần nguy lên qua con nước hoa tơ qua nâng người chân thơ cô ấy chân thơ ra nó phú ấy phân sinh Amazing and wonderful war dance performance. Ladies and gentlemen, we are now moving towards an important and inspiring moment of this program, where we will have the honor of hearing the thoughts of our honorable guest of honor, Shri Teom Kapak Sir. Sir, your presence is a matter of great pride for the stage. I humbly request you to kindly address us and inspire us with your motivating and valuable words. Sir, please. आज ओरेक फेस्टिवल का शुभ अवसर पर आप सभी को नमन करते हुए, शुभकामनाएं देते हुए मेरा ओर से आप सभी को मैं नमस्कार करते हूं। आज के मुख्य अतिथि Advisor to whom Education Department Government of Arunachal Pradesh Shri Muchu Muti जी, आज के स्पेशल इन्वाइटीज तपी सोरेन जी, वर्किंग कमिटी प्रेसिडेंट
National People's Party Arunachal Pradesh, especially in my case, Sri Junta Hankar, General Secretary State Unit, National People's Party Arunachal Pradesh, मेरे साथी ईटानगर से आए हुए दागली दोजी जी, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सीओ में बीजेपी, विशालनाथन डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज कराडादी डिस्ट्रिक्ट, टोनी हैदर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज लपारादा, तुमरो भाई एक सर्विसमैन का प्रेसिडेंट अरुणाचल प्रदेश, उसका टीम और फेस्टिवल सेलिब्रेशन कमेटी का प्रेसिडेंट एडवोकेट बंचू जी, जनरल सेक्रेटरी रेस्पेक्टेड जेपी मैडम, पामो ब्लेज का राजा, 4 ब्लेज का राजा, इस और फेस्टिवल को विटनेस करने वाला ऑफिसर्स, कल्चरल ट्रूप, गैदरिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने कभी नहीं सोचा था मैं लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में आके और एक फेस्टिवल में गेस्ट ऑनर का तौर पे हम बनेगा बल्कि मेरा सपना में भी नहीं था। और मुचुमिटी जैसे अरुणाचल का स्टार, अरुणाचल का फ्यूचर, यंग एंड डायनेमिक लीडर और अरुणाचल का विकसित का रूप आगे ले जाने वाला के साथ हमको आज गेस्ट ऑफ ऑनर का रूप में आज हमको आप लोग टाइटल दिया है, उसके लिए मैं कमेटी को शुक्रगुजार करता हूं। स्पेशल मैं थैंक्स देता हूं मेरा तपी सोरेंग भाई को, उन्होंने हमको टेलीफोन में बात किया और ये फेस्टिवल पूर्णा ब्लेज में सर्किल हेडक्वार्टर में सेलिब्रेशन किया जाएगा। आपको गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे आप कमेटी आपको अपील कर रहा है, आप क्या सोचता है? हमने बोला अरुणाचल में हम सारा कम्युनिटी का फेस्टिवल देखा, जैसे कंतीलू को भी देखा और मुंपा लोग का लौसर को भी देखा, सजरंग समाज का भी चिंदंग को भी देखा, अपना अबोतनिक कम्युनिटी का गलो निशी आदि अपतने तागिन ये सब फेस्टिवल को देखा। लेकिन मेरा लाइफ में कभी भी तीरथ चंगलन का फेस्टिवल का अपना आंखों से नहीं देखा। इसलिए हम आज का ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का प्रेसिडेंट को, एडवोकेट बंचू भाई को, आपको मेरे दिल से, हृदय से हम थैंक्स देता है। आज आपका कारण से हम आज गेस्ट ऑफ ऑनर का रूप में और एक फेस्टिवल को विटनेस करने मिला। और ये लड़का आप सभी को मैं बताता हूं, लड़का इतना उभरता हुआ लड़का है, उसको आपका बंचू समाज उसको आगे ले जाना है और इनकरेजमेंट देते जाना है ऐसे लड़का को। तो इसलिए मैं सोचा अपना कल्चर ट्रेडिशन को, हम सोचा था कि हम लोग का अबोतनी ग्रुप कल्चर एंड ट्रेडिशन को अच्छा से मनाया जाता है, लेकिन आज यहां आके देखा मेरा वंशी समाज भी हम लोग से बढ़ के अपना कल्चर ट्रेडिशन को बहुत अच्छा से सेलिब्रेशन करता है। हम अपना आंखों से, अपना दिल से, दिमाग से देख रहा है, तो उसको बेहतर रखना है। कल को और एक फेस्टिवल को
अब सभी सेलिब्रेशन नहीं करेगा, कोई नहीं कर देगा। इसलिए अपना फेस्टिवल को, अपना ट्रेडिशन को, अपना कल्चर को भूलना नहीं है। और कल को कोई भी बढ़ेगा, आज अरुणाचल में अपना कल्चर ट्रेडिशन को थोड़ा थोड़ा भूलने जा रहा है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी मिक्सअप करके ये सब ऐसे होने जा रहा है। ये सब होने नहीं देना है। अपना कल्चर ट्रेडिशन को ऐसे आने वाला पीढ़ी में भी बरकरार रखना हम अब सभी को अपील करता है। तो हमने सोचा था लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में, तिराप डिस्ट्रिक्ट में जगह ठीक नहीं होता होगा, सोचा था। लेकिन यहां में आके देखा है, हम अपना आपको शर्मिंदा फील करता है, क्योंकि हम लोग का इलाका आप लोग का जैसे जगह अच्छा नहीं। हम किसने सोचा था वंचित आदमी लोग, नौकरी आदमी लोग किस लिए इतानौर में नहीं आता है। आज देखा है तो अपना एरिया, अपना जगह इतना पावरफुल लैंड है, इतना अच्छा जगह है, उसको छोड़ के किसी और जगह जाने दिल में, इसीलिए आप लोग कैपिटल में नहीं आता हो। तो हम लोग का जहां में जगह टीकने वाला, कैपिटल में सब बूटे होकर बैठ जाता है, डिस्ट्रिक्ट जो माइग्रेशन का आ जाता है। लेकिन यहां में देखा है पूमा सर्कल में भी अपना पब्लिक इंटेलेक्चुअल यूथ अपना ब्लेज में भी इंटेक देता है। उसको देख के हम बहुत अच्छा लगा, उसको आगे बरकरार रखना है। इसी का साथ हम ज्यादा नहीं कहते हुए और इन फ्यूचर जो भी ओरे फेस्टिवल का कुछ कंट्रीब्यूशन करना है, मेरा दरवाजा खुला है। आप हर साल में मेरा पास आ जाइए। और आने वाला आप लोग का यहाँ की क्या नियम नीति करता है उसको मालूम नहीं है। हम लोग का आवो पानी का बोलने से हम लोग मिथुन करता है, आप लोग यहाँ में ये बैठो में करता है, बोला ना क्या करता, मिथुन करता है। और आने वाला साल में हम एक मिथुन दे देगा इसलिए कमेटी को। इसी का साथ मैं एक अपना तरफ से थोड़ा कमेटी को तोहफा देना चाहता है। तो कमेटी चेयरमैन आप आइए और मेरा थोड़ा आप लोग हमको इतना इज्जत दे के प्रेजेंटेशन दिया, मेरा तरफ से भी थोड़ा आप लोग रिसीव कीजिए। सभी को नमस्कार एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर इन ओरे फेस्टिवल। वंस अगेन थैंक यू, थैंक यू। खेल शुरू होने जा रहे हैं। रिक्वेस्ट करिबो चीफ गेस्ट जंगवान ngopongma
ubang becu yang kenal tak pau. देवियों सज्जनों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी उपस्थिति ही वातावरण की है। आज हम सौभाग्यवशाली हैं कि हमारे बीच ऐसे ही एक सम्मानित और प्रेरणादायक व्यक्तित्व है। अब मैं बड़े ही सम्मान और विनम्रता के साथ हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय मुचु मिथि जी, ऑनरेबल MLA रोइंग कम स्टेट चीफ स्पोक्सपर्सन बीजेपी तथा एडवाइजर टू मिनिस्टर होम एंड एजुकेशन को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। सर, कृपया मंच पर पधार कर अपने प्रेरणादायक शब्दों से हमें संबोधित करें। वांगचू समाज का सागर को सुखा नहीं पाएंगे। वांगचू समाज का एक उज्जवल भविष्य है और इसीलिए आज हमारे बीच आए हुए हैं हमारे साथ पूर्व ZPM भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज देम ज्ञापक जी, जो मुख्य वरिष्ठ अतिथि के रूप में आए हुए हैं। उनके साथ यहां उपस्थित है नेशनल पीपल्स पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट तपी सोरंग जी, साथों साथ बहुत सारे अतिथिगण हैं। मैं हर कोई का नाम जिक्र करूंगा। जुमता हंकर जी, दागली दोजी जी, टोमी हैदर जी, नवम विशाल जी, रातो दुगी जी, पटुंग तारो जी। क्योंकि आज से मैं भी एक वांगचू समाज का सदस्य हूं, तो आप सबका स्वागत इस मंच पर। मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं हमारे आपके ओरिया फेस्टिवल के अध्यक्ष श्री एडवोकेट वांगसू जी, यहाँ आपके जनरल सेक्रेटरी नोक्से वांगसू जी, आपके अपने ZPM चमाई वांगसू जी, चीफ ऑफ हमारे अलो वंगहम जी, उपस्थित यहाँ श्री वंगवाई वंगहम जी जो है चीफ ऑफ चाटिंग, चीफ ऑफ लुखाओ नंगजम वंगहम जी, चीफ ऑफ मैहुआ बस्ती का नाम अगर गलत फरमाया तो क्षमा करना, लुकाटो वंगहम जी, फाउंडर ऑफ कुमाऊ सर्कल श्री नकमा वांगवा जी, यहाँ उपस्थित जितने भी अतिथिगण, भाइयों बहनों दोस्तों और वांगचू समाज के लोग, आप सबको प्रणाम और नमस्कार। वैसे जब मैं मंच में पधारा था तो मुझे एक हाथ में बल्ला थमा दिया और दूसरी हाथ में बंदूक थमा दिया, और इस समय में मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आ गया। बुझी को राख कहते हैं, जली को राख कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बनते हैं उसको वांगचू समाज कहते हैं। वांगचू समाज योद्धा है। आप लड़ाकू विमान से भी तेज हैं और आज ये भीड़ ये दर्शाता है। मुझे कहा गया कि ये ऐतिहासिक भीड़ है। झूठ है या सच है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब यहाँ उपस्थित हुए, करीब धूप में भी बैठे हुए हैं। मैं आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जब मैं गाड़ी से आ रहा था तो किसी ने मुझे कान में चुपके से कहा, आप राजा और महाराजाओं के पवित्र भूमि पर पहुंच रहा है। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा, वांगचू समाज के साथ अगर आप दोस्ती बनाएंगे
वो जीवन भर आपके हाथ नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ हमेशा लेके चलेंगे। फिर उन्होंने कहा, लेकिन अगर आप वांगचू समाज को धोखा दिया तो आपको सर कट जाएंगे। तो हमें किसी को भी यहाँ सर नहीं काटना है, आपको मजबूत करना है, इसीलिए हम सब यहाँ आए हुए हैं। मैं ज्यादा आपको भाषणबाजी नहीं कहूंगा, क्योंकि यहाँ उपस्थित है हमारे बुजुर्ग, यहाँ के राजाओं, चीफ, भाइयों बहनों, आप सब उपस्थित हैं, जो दर्शाया है संस्कृति के बारे। वॉर डांस आपने दिखाया है, बंदूक चलाया है। मैं आपको क्या सिखाऊं, मैं आपको क्या समझाऊं? मेरा उम्र भी देखिए छोटा है, मेरा उम्र लेकिन छोटा हो सकता है, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है। आपके लिए हमेशा झलकता है मेरा दिल। और इसीलिए जब आपके अध्यक्ष एडवोकेट वांगसू जी मुझे यहां बुलाया तो मैं तो हमेशा तैयार ही था कब यहां पहुंचना है। गलती आप लोगों का है कि कभी बुलाता ही नहीं। वांगसू जी मेरे दोस्त है। मैं बहुत वर्ष पहले उनको एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म में मिला था, बहुत वर्ष पहले। शायद चुनाव भी चल रहा था, और आपको पता है चुनाव के समय में दुश्मन भी आपके सामने हंसते हैं, स्माइल करते हैं। जब दुश्मन आपको आपके समक्ष हंसते हैं, तब आप अपने दोस्तों को भी शक करने शुरू हो जाता है इलेक्शन पर, आपको तो पता है। लेकिन तब से आज तक वांगसू जी को मैंने देखा है, तब से आज तक आपके वांगसू समाज के मर्यादा को कभी नहीं छोड़ा। जहां थे वहां हमेशा रहा, आपके लिए लड़ते रहा। ये होता है व्यक्ति के ताकत, ये होता है व्यक्ति के शक्ति। और ये शक्ति उनके पास से नहीं आ रहा है, ये शक्ति यहाँ के समाजों से आ रहा है। ये केवल उदाहरण हमारे वांगसू जी का नहीं, ये हर एक नौजवान वांगसू समाज का है। आप हमारे उज्जवल भविष्य है, और इस उज्जवल भविष्य को आपको अरुणाचल को दिखाना है, दर्शाना है। एक समय होता था, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट जिला जरूर नहीं बना था, लेकिन यहां का लोग बहुत मजबूत होता था, विकसित जगह होता था। मैंने भाषण में राना जली को आग, बुझी को राग, जिस राग से बारूद बनता है वांगचू जाट कहते हैं, इस तरीका से था। मैं भी छोटा था, आपके बारे सुनता था। आज आपको फिर एक पहल लेना है कि किस तरीका से आगे चले। और ये जो मैदान होता है, यही मैदान पर अब संकल्प लेते हैं, रेजोल्यूशन लेते हैं कि वांगसू समाज कहां थे, कहां है और कहां जाएंगे। ये आपके भविष्य बनाता है। मैं आज टग ऑफ वॉर यहां बीच पर देखा हूं, मुझे याद आया एक कहानी जो मैंने सुना था। एक गांव पर 2 फुटबॉल टीम थे, 2 फुटबॉल टीम, हट्टा तगड़ा एकदम मजबूत फुटबॉल टीम। दोनों एक दूसरे के साथ गेम खेला और कहा कि जो टीम जीतेंगे उस बस्ती को वो राज करेंगे। इसीलिए पूरा जान लगा के उन लोग दोनों टीम खेलते रहा। 1 घंटा खेला, कुछ नतीजा नहीं आया। 2 घंटा खेला, ओवर टाइम पर भी खेला, ओवर के ओवर टाइम भी करा खेला, ओवर के ओवर टाइम भी खेला, लेकिन गोल 0-0 थे। गोल 0-0 क्यों थे?
क्योंकि गोल पोस्ट ही नहीं बनाया उन लोगों ने। तो ये कहानी का अर्थ ये है कि समाज को, व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए आपके पास एक गोल पोस्ट बनना है और इसी गोल पोस्ट के जरिए आपकी जो ताकत है, क्षमता है, वो बरकरार बनेंगे। आप मेरे अपने हैं, आप ईस्ट अरुणाचल हमारे सब अपने हैं। हम चाहते हैं कि आप मजबूत बने। हम चाहते हैं जैसे वंशु समाज यहां दर्शाया, जिस तरीका से आप लोगों ने हमें आदर दिया, सम्मान दिया, मैं चाहता हूं कि अरुणाचल के हर व्यक्ति आपको, समाज को भी उसी तरीका से आदर दे और उसी संकल्प से, उसी सोच से आपको आगे बढ़ना है। मैं जानता हूं यहां युवाओं, आप हमारे भविष्य है और हर लोग युवाओं को कहते रहते हैं कि आप हमारे भविष्य है। जब आप हमारे भविष्य है तो कहते तो रहूंगा ही, ये हमारे काम होता है, ये हमारे कर्तव्य होता है। यहां के अफसर आपके जरिए वंशु समाज को पहचान मिलता है, किस तरीका से ये मंच पर आपने अपने संस्कृति को, विरासत को जड़ से पकड़ के रखा। ये बहुत कम समाज में दिखाई देता है, ये आपकी खूबी है। आप सीमित, आप प्रसिद्ध केवल अरुणाचल में नहीं, पूरे देश में आपको प्रसिद्ध होना है और आप पे वो क्षमता है, हमें दिखाई पड़ता है। मैं आपको केवल आपको एहसास ही दिला सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं कर सकता हूं। मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूं कि आपको ये कहूं कि मैं आपको ये दिलाऊंगा, ये दिखाऊंगा, ये बात नहीं। मैं आपको जो पटरी पर चल रहा है वो पटरी के रास्ता दिखा रहा हूं, सही पटरी पे है, लेकिन इससे और तेज गति से आपको आगे बढ़ना है। इसका नतीजा आप ही कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। हमारे राज्य सरकार पेमा खांडू जी के नेतृत्व में, हमारे केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जब मैं यहां आ रहा था किसी ने मुझे जिक्र किया कि रास्ता बहुत खराब है, रास्ता पे मुझे फ्री मालिश भी मिला है गाड़ी पर ये सरकार, मैं ऐलान नहीं कर रहा हूं, मैं जानता हूं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने एक नए योजना ऐलान किया है, चीफ मिनिस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव रूरल रोड प्रोग्राम, और उसके जरिए मेरा बात मानिए, ये सरकार की बात है, ये सड़क जरूर बनेंगे ही। आपको केवल सरकार के साथ हाथ थमा के आगे चलना है। किसी ने जिक्र किया कि मेरा पिताजी बहुत वर्ष पहले यहां आए थे, राशन देके गए। मैं तो राशन नहीं, सिर्फ भाषण देके जा सकता हूं, पर जब आपने इतने सम्मान देके यहां बुलाया है, मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपके बीच इस मैदान पे खड़ा होकर आप सभी को वचन देता हूं कि मेरे डिपार्टमेंट, शिक्षा डिपार्टमेंट या होम डिपार्टमेंट में कुछ भी फंड होता है, मैं आपके लिए अपने मंत्री के साथ लड़ूंगा और आपको दिलाने की कोशिश करूंगा। पर इतना ही नहीं, हर एमएलए का इजाजत होता है कि 10% उनके एमएलए फंड से दूसरी जगह पर वो दे सकता है। मैं आपके बीच यहां ऐलान करता हूं कि मार्च के बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मैं रोहिंग के निवासियों आपको 10 लाख देंगे इस मैदान के लिए। केवल
उतना ही नहीं, मैं आपके बीच में फिर खड़ा होके मैं आपको ये ऐलान करता हूं कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट में भी हमारे तरफ से, मेरे तरफ से आपको अनदर 10 लाख मिलेंगे। कुल मिला के मैं अपने जनता के जो धनराशि होता है आपको देंगे, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। और केवल समाप्त नहीं, उतना ही नहीं, मैं जाते जाते वक्त मेरे पास जो छोटा मोटा पूंजी भी है, मैं आपका चेयरमैन को संभाल के दे के चलूंगा। ये हमारे तरफ से छोटी सी भेंट है। ये तो देने के बाद के है बोल रहा हूं मैं, ऐसे तो नहीं कि मैं अपने पॉकेट से दे रहा हूं। ये तो सरकारी खजाना से मैं कह रहा हूं, ऐलान कर रहा हूं, और आपको जरूर मिलेंगे ही, ये मेरा वचन है। लेकिन और दूसरा चीज मैं आपको देने चाहता हूं, हर यहां महिला वर्ग जो बैठे हुए हैं, मैं आपको देने चाहता हूं हमारे पूरे संपूर्ण अरुणाचल के आशीर्वाद, ताकि आप आगे बढ़े, वंगचू समाज आगे बढ़े। इसी बात में ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करूंगा। आपने मेरे पिता को आशीर्वाद दिया और आज आप सभी यहां जमा होके मुझे आशीर्वाद दिया, मैं ये कभी नहीं भूल सकता हूं। बड़ों के आदर, युवाओं के प्यार, महिलाओं के आशीर्वाद मेरे जिंदगी में हमेशा रहेंगे, मेरे रगों में हमेशा रहेंगे। अंत में मैं फिर से आप सबको धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने जितने यहां अतिथि आए सबको इतने आदर दिया, इतने प्यार दिया। इस मंच से आपने अरुणाचल को अपने संस्कृति दिखाया। मैं चाहता हूं कि आपके भविष्य उज्जवल रहे। यही बात में धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच वंशु जी और उतने जितने भी कमेटी के मेंबरान। जाते वक्त वंशु जी, छोटी सी बात है, जैसे मैंने जिक्र किया था, मैं करोड़पति नहीं हूं, मैं दिल का करोड़पति हूं, इसलिए छोटा सा भेद देख के मैं चलता हूं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for delivering such an inspiring speech. Your words have enlightened us and motivated us to strive for excellence in our endeavors. Your valuable insights and experiences shared today have left a lasting impression on all of us. We truly appreciate the time and effort you took to be with us and contribute to the success of this event. Thank you once again for honoring us with your presence and for your encouraging words. Sir, thank you for gracing us with your presence despite your busy schedule. Your inspiration words have been the true essence of this occasion. And I also wish to extend my gratitude to the guests of honor of today's chief guest of honor, Sri and other distinguished guests, those who have taken pain to come over here to be a part of this program today. And I also wish to give thanks to all the chief GBs, Panchayat leaders and the dance troupe, those who have come from the poor villages to take part in this program. Once again, I also wish to give thanks to the two sisters who have hosted this program, today's program. Once again, I thank one and all for making this program a grand success. Thank you. Oh
आइए जल्दी, का मोबाइल पिकअप है उसको। Dia yang sedang